Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be safe and sound with the grace of Almighty Allah. Yesterday, I have given you the reading of the last paragraph of Unit 2, Lapa Lion Learns to Roar. Your parents will take your reading test, but they will not give you marks on the book. After vacations, I will take your reading test and give you marks, inshallah. Now, note down your today's homework. Today, the date is 20th April 2020 and the day is Monday. Homework is English written plus oral. Learn exercise A activities of Unit 2 from book page number 9. Play lecture number 4. Today's homework is related to the book exercises of Unit 2. Exercise A. Learn this exercise carefully and play the lecture and listen carefully and cover your homework properly. Okay? Now we are going to start our new unit, Unit 5. It's also a comprehension. Comprehension means samajh, adrak, fahm. To understand something clearly, किसी चीज़ को वाज़ेह तौर पर समझना comprehension कहलाता है. It's on page 21 and the title of this unit of this story is Megal helps out. Megal मदद करता है. Megal is a goat, helps out मदद करता है. Dear students, it's a Megal. Dear students, let me introduce a Megal to you. Let me introduce the Megal to you. It's a Megal, a goat. Megal. Megal was a goat. Megal was a goat. Megal was a goat. Megal एक बकरा था. He had 3 sheep. उसके पास 3 भेड़ें थीं या 3 दुम्बे थे. One is Yuna. It's Yuna. It's Olan. It's Olan and it's Curly. Yuna, Olan and Curly are 3 sheeps. मेगल एक बकरा था. उसके पास 3 दुम्बे थे या 3 बेड़ें थीं. एक का नाम था यूना, ये वाला यूना है. एक का नाम था ऑलन, इट्स ऑलन. एंड थर्ड वन का नाम था कर्ली. Put your index finger. Yuna, U-N-A. Yuna had a green mark on her back. Back कमर. यूना had a green mark on her back. यूना की कमर पर सब्ज रंग का निशान था. As you can see in this picture. यूना is the name of a sheep. Had था a green mark, सब्ज निशान on her back, कमर पर, उसकी कमर पर. Her back means यूना is female. फीमेल जेंडर. हर जेंडर इज़ फीमेल. ये ठीक है. यूना हैड अ ग्रीन मार्क ऑन हर बैक. द सेकेंड, ओलन हैड अ रेड मार्क ऑन हिज बैक. ओलन की कमर पर सुर्ख निशान था. ऑन हिज बैक मीन्स ओलन इज़ अ बॉय, यूना इज़ अ गर्ल, female gender, and Olan is a boy, male gender. Curly had lots of curls. और जो कर्ली था उसकी पूरी बॉडी पर कर्ल्स थे, घुंघरियाले बाल थे सारे. उसके जो बाल थे बहुत ज़्यादा घुंघरियाले थे, इसलिए इसका नाम कर्ली था. इस पर कोई मार्क, कोई निशान नहीं था. ओके, repeat with me the first paragraph. Megal was a goat. He had 3 sheep. Yuna, Olan and Curly. Yuna, Olan and Curly. Yuna had a green mark on her back.
Yuna had a green mark on her back. Olan had a red mark on his back. Olan had a red mark on his back. Curly had lots of curls. Curly had lots of curls. We are starting second paragraph. The farmer put the sheep in the yard. किसान रखता था इन भेड़ों को सहन में। ये जो बकरा था और ये जो भेड़ें थीं, ये एक किसान ने पाली हुई थीं। किसान शीप्स को, भेड़ों को सहन में रखता था, ठीक है, अपने घर के ओपन एरिया में रखता था। द फार्मर कट द वूल। किसान भेड़ों का ऊन काट देता है। किसान भेड़ों का ऊन काट देता है। जो शीप के ऊपर बाल होते हैं, वूल उसको कहते हैं, जो जैकेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, गर्म कपड़े बनाने के लिए इनकी ये वूल इस्तेमाल होती है। तो किसान जो है इन तीनों भेड़ों का जो वूल होता है वो काट देता है। The sheep were sad and cold. जो भेड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा उदास थीं। क्यों? क्योंकि किसान ने उनका जो वूल था वो काट दिया। किसान ने भेड़ों का वूल काट दिया। द शीप वर सैड, जो भेड़ें थीं वो उदास थीं, एंड कोल्ड, और सर थीं या उनको सर्दी लग रही थी। दे हैड नो वूल, उनके पास ऊन नहीं था, मतलब उनकी बॉडी का जो वूल था वो हटा दिया था फार्मर ने, उन पर ऊन नहीं था। पुअर मैगल वॉज शॉक्ड, बेचारा मैगल जो था, बेचारा मैगल, इट्स अ मैगल, मैगल वॉज शॉक्ड, मैगल वॉज शॉक्ड। पुअर मैगल, बेचारा मैगल, वॉज शॉक्ड, उसको बहुत सदमा पहुंचा, दुख पहुंचा। शॉक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वेयर इज यूना, यूना कहाँ है? वेयर इज यूना? वेयर इज ओलन, ओलन कहाँ है? वेयर इज कर्ली, कर्ली कहाँ है? क्योंकि वो तो इन तीनों भेड़ों को उनके वूल की वजह से पहचानता था। यूना के वूल पर ग्रीन निशान था तो वो पहचानता था। ओलन के बैक पर वूल पर रेड निशान था तो वो इसलिए पहचानता था। और कर्ली को उसके कर्ल्स की वजह से पहचानता था। तीनों का वूल जब उतर गया तो अब उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सा यूना है, कौन सा ओलन है, कौन सा कर्ली है। सडनली मैगल जंप्ड, अचानक मैगल ने छलांग लगाई। ओवर द फेंस, जंगले के ऊपर से। फेंस, FENCE, फेंस, फेंस कहते हैं जंगले को। अक्सर आप लोगों ने अपने छत पर दीवार की जगह ग्रिल्स लगाई होती हैं, ठीक है, वो फेंस हो सकता है। सीढ़ियों की साइड्स पर जो आप लोगों की ग्रिल्स हैं वो फेंस हो सकता है, ठीक है, उसको भी फेंस कह सकते हैं, जंगला। तो जो फार्मर के सहन में फेंस लगा हुआ था, जहाँ उस फेंस के अंदर उसने भेड़ों को रखा हुआ था, तो अचानक मैगल जो था उसने छलांग लगाई फेंस के ऊपर से, जंगले से उसने छलांग लगा दी, ठीक है, उसने इस तरह छलांग लगा दी। ही रेन टू द यार्ड, वो भागा सहन की तरफ, और सहन की तरफ भागा। जो मैगल था उसने जंगले पर से छलांग लगाई और सहन की तरफ भागा। देयर वॉज पेंट इन द यार्ड, सहन में रंग पड़ा हुआ था। पेंट जिससे आप लोग दीवारों वगैरह को कलर करते हैं या फर्नीचर को कलर करते हैं, जो कलर आप लोग करते हैं उसको पेंट कहते हैं। तो जो सहन था जहाँ पर बेड़े थी वहाँ पर कलर पड़ा हुआ था। तो जब वो मैगल पेंट के पास चला जाता है, यूना रेन टू द ग्रीन पेंट। देखें डियर, मैगल जाता है सहन में और जाकर पेंट्स के पास खड़ा हो जाता है।
भेड़ों को समझ आ जाती है कि मैगल को समझ नहीं आ रही कि हम में से यूना कौन है, ठीक है, ग्रीन मार्क वाला कौन है, ओलन कौन है, रेड मार्क वाला कौन है। तो उनको समझ आ जाती है कि मैगल को अब समझ नहीं आ रही। तो जैसे ही मैगल बकरा जाता है पैंट के पास, तो यूना रेन टू द ग्रीन पेंट, यूना भागता हुआ जाता है और उस पेंट में से ग्रीन कलर के पेंट के डब्बे के पास खड़ा हो जाता है। यूना रेन टू द ग्रीन पेंट, यूना भागकर ग्रीन पेंट के पास खड़ा हो जाता है। यूना भागता है, ठीक है, यूना भागा टू द ग्रीन पेंट, सब्ज रंग की तरफ। यूना भागा सब्ज रंग की तरफ, ठीक है। मैगल पुट हिज हूफ इन द पैंट, मैगल क्या करता है, मैगल ने अपना हूफ, देखें डियर, ये मैगल है, इसकी जो लेग्स हैं, इसके नीचे ये जो खुर है ना, हूफ, ये पेंट में इस तरह डबोता है। मैगल अपना हूफ इस तरह पेंट में रखता है और यूना की बैक पर इस तरह लगा देता है, उस पर दोबारा से ग्रीन निशान लगा देता है, ठीक है। मैगल ने रखा हिज हूफ, अपना खुर, ये इनके हूफ हैं, हूफ। मैगल ने अपना खुर रखा, अपना हूफ रखा इन द पेंट, रंग में। ही पुट अ ग्रीन मार्क ऑन यूनास बैक, और वो उसने यूना की कमर पर सब्ज रंग का निशान लगा दिया। ओलन रेन टू द रेड पेंट, ओलन भागा सुर्ख रंग की तरफ। मैगल पुट हिज हूफ इन द पेंट, मैगल ने रखा अपना खुर रंग में। अब मैगल ने लाल कलर के रंग में अपना हूफ रखा। ही पुट अ रेड मार्क ऑन ओलन्स बैक, और ओलन की बैक पर रेड कलर का पेंट का निशान लगा दिया। कर्ली रेन टू द पेंट, कर्ली भागा रंग की तरफ, लेकिन डियर कर्ली पर तो कोई कलर ही नहीं था, तो वो किस कलर की तरफ भागेगा। कर्ली रेन टू द पेंट, कर्ली भागा रंग की तरफ। व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँगा, सैड मैगल, मैगल ने कहा, क्योंकि कर्ली पर तो कोई कलर ही नहीं था। ही पुट अ रेड मार्क एंड अ ग्रीन मार्क ऑन कर्ली, तो वो क्या करता है कि वो कर्ली पर एक ग्रीन मार्क लगा देता है और एक रेड मार्क लगा देता है, दोनों कलर के मार्क लगा देता है कि ये दोनों कलर कर्ली के हो गए, ठीक है। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, द साउंड ऑफ शीप, सैड यूना, यूना ने कहा बा बा, सैड ओलन, ओलन ने भी कहा बा बा, सैड कर्ली, कर्ली ने भी कहा बा। मैगल वॉज हैप्पी, मैगल खुश था। नॉट बा एट ऑल, अब बा, नॉट बैड एट ऑल, सॉरी इट्स नॉट बा, here D, not bad, he sang bad, not bad at all, कुछ बुरा नहीं है, यकीनन कुछ बुरा नहीं हुआ। वो कहता है कि मतलब चले उसने वूल काट दिया, बुरा हुआ, लेकिन अब मैंने अपने लिए निशान लगा दिए हैं, अब मुझे पता है कौन सा यूना है, कौन सा ओलन है, कौन सा कर्ली है, इसलिए नॉट बैड एट ऑल, यकीनन कुछ बुरा नहीं है, सैड मैगल ने कहा। ओके, now repeat with me the reading. मैगल was a goat. He had 3 sheep, Yuna, Olan and Curly. Yuna had a green mark on her back. Olan had a red mark on his back. Curly had lots of curls. The farmer put the sheep in the yard. The farmer cut the wool. The sheep were sad and cold. They had no wool. Poor मैगल was shocked. Where is Yuna? Where is Olan? Where is Curly? Suddenly, अचानक, मैगल jumped over the fence. He ran to the yard. There was paint in the yard. Yuna ran to the green paint. मैगल put his hoof in the paint. He put a green mark on Yuna's back. Olan ran to the red paint. मैगल put his hoof in the paint. He put a red mark on Olan's back.
Curly ran to the paint. What shall I do now? Said Maggle. He put a red mark and a green mark on Curly. Bah, said Una. Bah, said Olin. Bah, said Curly. Maggle was happy. Not bad at all, said Maggle. Now we have finished this unit number 5. We will start the book exercises of unit 5 in the next video, inshallah. Hope you enjoyed a lot this story. Now wait for the next video. Thanks.